नमस्ते बच्चों। तो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ असाइनमेंट 1 वेव। तो आपने पहला डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर किसी फंक्शन का इनपुट x प्लस माइनस वी टी जैसा होता है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। और ये भी पूछा है कि अगर कोई फंक्शन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो x प्लस माइनस वी टी जैसा हो। तो हाँ, अगर कोई फंक्शन वेव फंक्शन है तो उसे x प्लस माइनस वी टी जैसा होना ही पड़ेगा। ये उसके वेरिएशंस आप जानते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट t प्लस माइनस एक्स बाई वी। ओके, बट हाँ, नॉट ऑल द फंक्शंस विच आर ऑफ द टाइप x प्लस माइनस वी टी इनपुट represent waves. There are other two conditions also which says that function should be single valued and another one is it should give some finite value for any given input. So say if you consider option A of question number 3, so let me tell you कि अभी हम solve कर रहे हैं, just a second, part 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और उसका फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ x माइनस वी टी का स्क्वायर। दिस इज़ ए परफेक्टली हेल्दी क्वेश्चन। जो ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस माइनस वी टी के जैसा है, सिंगल वैल्यूड है। ओनली प्रॉब्लम दिस हैज़ इज सपोज इफ आई टेक एनी इंस्टेंट से t इक्वल टू 0 एंड आई टेक x टेंडिंग टू वेरी लार्ज नंबर, माई y, दिस इज बेसिकली इक्वल टू y, माई y विल टेंड टू ए वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, सो व्हाट यू से इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ए वेव फंक्शन। ठीक है, नाउ बॉम्बे, से बॉम्बे इज यू हैव दिस log ऑफ x प्लस वी टी डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। बच्चों इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। सपोज एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, ठीक है, what is this becoming? This is becoming y equal to log of 0, and how will you find log of 0? You understand this? Because log of 0, what will you write? 10 to the power y is equal to 0. So can you find any y for which 10 to the power y is 0? Okay, and if you find that y, it will be minus infinite, yes or no? So once again here at this particular point, y is traveling towards minus infinite. So that's again a problem. It is not giving finite value. If I go to option C here, which is y equal to 1 by x plus vt, so this also has a problem because at x equal to 0 and t equal to 0, where it is going, it is again going to very large numbers. So not finite value I am not getting for given input of x and t. So here, though the answer is given Chennai, but you can correct the answer. None of these functions given here will represent a wave function. I hope it is clear to you now. Well, so next doubt is question number 4 from the same part 1. So I take it here, question 4. Equation of wave traveling on a string stretched along x-axis is given by y equal to a e to the power minus x by a plus t by t ka whole square. Well, so one by one I can tell you and these parts here. So first part, write the dimensions of a and t. I don't think you will have any problem because dimension exponential function input भी dimensionless होता है और output भी dimensionless होता है. So this term, complete this term, ये कैसा term रहेगा? Dimensionless. So dimensional formula of a will be same as dimensional formula of y. So it will be nothing but L. Similarly, input is also dimensionless. You'll write dimensions of x by a will be same as dimensions of t by t. सो यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको पता है यहाँ से मुझे कैपिटल ए एंड टी की डायमेंशंस चाहिए, नॉट ए प्रॉब्लम। सो एंड वन मोर थिंग दैट x प्लस एक्स बाई ए एंड प्लस टी बाई टी, दिस टर्म इज डायमेंशनलेस. This is dimensionless because this is input of exponential function. So for this to be dimensionless, each of these terms should be dimensionless. It implies dimension of a is same as x and dimension of capital T must be same as this time. So x is L, तो ये आपकी L आ जाएगी और ये बच्चों T आ जाएगा. तो dimension of capital A is like length, dimension of
Small a is like length, dimension of capital T is like time. Okay, I hope it is clear. Then it is asking speed of wave. So let me move forward. Speed of wave, how will you find? Speed of wave find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? I give you one thing. You can write speed of wave as coefficient of t divided by coefficient of x. So you can easily write what is coefficient of t here, 1 by t. What is coefficient of x here, 1 by a. So it is a by t. ठीक है? In which direction the wave is traveling? It's very easy. You can check the input. It is like ax plus bt. Yes or no? This is this kind of input, and so wave is traveling in negative direction क्योंकि x और t दोनों के coefficient कैसे हैं? Positive. ठीक है. Where is the maxima of the pulse located at t equal to t? So maxima of pulse कहाँ located है at t equal to t? तो it's a mathematical question. You just put that term there. So let's see what we'll have in the function. So मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप question देख लीजिए ज़रूर. तो y is equal to a e to the power minus of x by a plus of t by t का whole square. तो इसमें उसने पूछा है एट t इक्वल टू दिस कैपिटल T. आई एम टेलिंग यू. सो y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस x बाई a, आई एम सॉरी, प्लस 1 कैपिटल T जगह पुट करेंगे. तो अब बच्चों इसका मैक्सिमा पूछ रहा है हमसे, है ना. तो वेयर इज मैक्सिमा ऑफ पल्स लोकेटेड मीन्स में से x पूछ रहा है जहाँ पे y मैक्सिमम हो. अब बच्चों y मैक्सिमम कितना हो सकता है आप खुद सोच के देखिए. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप खुद सोचिए. ये जो इनपुट है उसके स्क्वायर हो रहा है, यस और नो. यानी e टू दी पावर ऐसा कुछ सोचिए, a e टू दी पावर माइनस ऑफ z लिखा हुआ है ना. वेयर व्हाट इज z? वेयर z इज दिस नंबर x by a plus 1 का whole square. Now you know the graph of such functions. Yes, and the good thing is z is always positive. तो e to the power minus x का ग्राफ आपको प्लॉट करना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे. दिस इज योर z, ये 0, और यहाँ पे a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना. क्योंकि z हमेशा पॉजिटिव ही रह सकता है, x बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है. तो मैक्सिमम कहाँ पे बन रहा है? व्हेन z इज 0. So z is 0 means what? X by a plus 1 equal to 0. So x is equal to minus a. So at x equal to minus a and at t equal to capital T, it is having its maxima. Another at t equal to 2t. So not much will change. ये function है वो कितना हो जाएगा? ये जो function है वो अभी बन जाएगा y equal to a e to the power minus of x by a plus 2 का whole square. तो बच्चों उसी स्टाइल से x बाई ए प्लस 2 को आपको 0 रखना पड़ेगा. तो x आ जाएगा आपका -2a. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर. वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड. समबडी हैज आस्क्ड एग्जांपल 17.3. सो लेट मी चेक 17.3. इसमें क्या बोल रहा है अपने को? एक सिंपल वेव इक्वेशन दी हुई है और हमसे कुछ पार्ट्स पूछ रहा है, ठीक है. एंड somebody is having problem with the displacement part of this. So don't worry about the displacement part here. You may be getting the numbers जिनका आपको साइन वैल्यू वगैरह नहीं पता है. You don't worry about it. So see how can I write? So 17.3. So equation दिया है y is equal to 0.005 sin of 80x minus 3t. एंड मैं वही पार्ट आंसर कर रहा हूँ जो डाउट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट एट, which is it is asking displacement at x equal to 30 and centimeters and t equal to 20 seconds. and मैं एक बार चेक कर लूँ कि x को मेज़र किस में किया जा रहा है. तो numerical constants are in SI units, ठीक है. कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड ऑल ठीक है. तो आप देखिए 80 रेडियन पर मीटर, यानी x को जो मेज़र किया जा रहा है बच्चों वो मीटर में किया जा रहा है. तो आप x को क्या लिखेंगे वहाँ पे? फिर x को आप लिखेंगे 0.3 मीटर और t क्या है आपका 20 सेकेंड्स. तो आपको y मिल जाएगा 0.005 साइन ऑफ मल्टीप्लाइड 24 माइनस 3 इंटू टी, सो 60.
So you'll have 0.005 sine of -6, but remember this is in radian. ठीक है, तो साइन ऑफ 6 रेडियन यानी 6 इज नियरली 2 पाई कितना होता है 6.28 होता है, तो समवेयर इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस एंगल एनीवे. तो इसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू आपको पता है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डाउट जो पूछा गया मेरे से वो है 17.6. सो लेट मी सी. बिफोर दैट आई हैव पार्ट टू में किसी ने 4th क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पार्ट 2 का 4th देख लेते हैं. बट पार्ट 2 डज नॉट हैव 4th, देन व्हाट इज आस्क्ड. अगर आपका डाउट रह जाता तो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिए. ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे पार्ट 2 में किसी को डाउट है. 17.6, यस 17.6. तो ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है 2008 का. इसमें आपको एक ग्राफ दिया है YX ग्राफ, है ना. तो YX ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपको याद दिला दूँ मैं. YX ग्राफ रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ मीडियम. ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है P. तो वैसे ही ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है. सबसे पहले ट्रांसवर्स पल्स है, किधर ट्रैवल कर रही है x डायरेक्शन में, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहे होंगे y डायरेक्शन में. तो आई कैप तो वैसे ही गया. अब बचा जे कैप या माइनस जे कैप. अच्छा, वेव किधर ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो v पॉजिटिव है. तो आपको पता है पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग. ये मैंने लिखवाया आपको फॉर्मूला. तो एट पॉइंट P इफ़ यू चेक द स्लोप बच्चों, तो स्लोप यहाँ पे आ रही है आपकी नेगेटिव और ये जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव, यानी कि जो VP है वो आएगा बच्चों आपका यहाँ पे. इफ़ आई चेक एट पॉइंट P स्लोप आपकी नेगेटिव आ रही है, यस, एंड वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना. तो माइनस माइनस मिलके आ रहा है आपका पॉजिटिव. बिल्कुल सही है. तो ये जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, फिर पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन. अब इसका वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम. तो इसके लिए इसने मुझे आगे बोला हुआ है क्या क्या चीज़ें दी हुई है. मुझे वेव स्पीड दिया हुआ है, सो लेट मी फाइंड वेव स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड दूसरा पार्ट है वेवलेंथ 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड विच इज़ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5. तो इसमें जो y दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर, इस टाइम पे v पूछ रहा है. तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा SHM का. VP इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा. सो VP होगा आपका ओमेगा. अच्छा, ओमेगा कैसे निकालोगे, आपके पास v और लैम्डा दिया हुआ है ना. तो ओमेगा इसे आप लिखिए v इक्वल टू ओमेगा बाई k. यस, ओमेगा इज VK. सो ओमेगा इज v इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. ओके, सो आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें. VP इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू v कितना है अपने पास 0.1 मीटर में पुट करिएगा इंटू 2 पाई, लैम्डा इज 0.5. ठीक है, और इनको भी अपन मीटर में ही पुट करेंगे क्योंकि मुझे जो आंसर देना है वो मीटर पर सेकेंड में देना है, एज आई कैन सी इन ऑप्शंस. ओके, सो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर के लिए. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाई 5 इंटू रूट ऑफ दिस 0.01 माइनस यू कैन सॉल्व इट, है ना. 25 आएगा और तो 0025 है ना, 4 डेसिमल के बाद आएगा. तो you can subtract and you can solve anyway. You can will get this value is equal to √3 pi by 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और डायरेक्शन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 pi by 50 मीटर पर सेकेंड इंटू जे कैप. ठीक है, तो डायरेक्शन का स्पेशली ध्यान रखें आप. स्लोप देखिएगा, स्लोप नेगेटिव है और वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. उसमें एक और माइनस आता है फॉर्मूला में, जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन नेगेटिव आ गई है. चलिए, नेक्स्ट डाउट विच इज आस्क्ड 17.8. अच्छा, इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस की बात हो रही थी बच्चों. तो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस, पर चलिए समझा देता हूँ मैं कैसे करेंगे. तो 17.7 वाला ही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ
4t माइनस 0.02x। तो पहला पार्ट पूछ रहे हैं हमसे फेज डिफरेंस एट टू डिफरेंट टाइम्स फॉर एक पार्टिकल, यानी पार्टिकल फिक्स कर दिया, मतलब बच्चों क्या कर दिया, x फिक्स कर दिया, और टाइम डिफरेंस कितना दे रहा है ये इंटरवल का 1 सेकेंड। तो आपको पता है डेल्टा फाई इज 2π/t इंटू डेल्टा टी, ठीक है। या फिर आप सीधा बोल दें 2π/t होता है क्या है भाई, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और ओमेगा कितना दिया है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 1, सो आंसर आ जाएगा आपका 4 रेडियंस। बॉम्बे में देखो क्या पढ़ो, टू डिफरेंट पार्टिकल्स लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एट सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, टी फिक्स कर दिया है ना, टी फिक्स कर दिया तो मीडियम का कुछ शेप दिखेगा। मैं अप टू द स्केल प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट उठा लिया, इनका फेज डिफरेंस पूछ रहा है और उनके एक्स का डिफरेंस उसने दे दिया है, कोई इशू नहीं है। तो मुझे याद होना चाहिए फॉर्मूला 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज k डेल्टा एक्स। k in this is 0.02 and delta x, the part difference is 10 centimeter, which I can write 0.1. So I will get 0.002 radians. ठीक है, the phase difference in this particular case. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 17.8 का सेकेंड पार्ट में मैं भूल गया था कि उसने x किस में मेज़र किया है। तो जब मैंने चेक किया तो x सेंटीमीटर में मेज़र हो रहा है, आप एग्जाम्पल में देखिए, और उसने जो मुझे डेल्टा x दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर ही दे रखा है। फिर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फॉरवर्ड, आई हैव पार्ट 3, somebody has asked question number 3 and 4, so let's check. Question number 3, equation is given to me, it is asking particle velocity at x equal to this and t equal to this. तो थर्ड का बॉम्बे पूछा हुआ है किसी ने, so let's see. So now part 3, थर्ड का बॉम्बे। तो इक्वेशन तो है ही मेरे पास, y इज इक्वल टू 0.02 साइन ऑफ x बाई 0.05 प्लस t बाई 0.01, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। x मीटर में मेरे से पूछ रहा है वेलोसिटी बता दो, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो 0.02 एज इट इज़, आपको पता है ना vp क्या होता है, del y बाई del t। तो 0.02 साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x बाई 0.05 प्लस टी बाई 0.01, और फिर अंदर डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1 बाई 0.01। सो आई विल गेट 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 0.05 प्लस टी बाई 0.01। आपको पता करना है किस x पे, x इज इक्वल टू 0.2, t इज इक्वल टू 0.3। पुट कर दीजिए नंबर्स को तो आपको वीपी मिल जाएगा 2 कॉस ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस, देखिए है ना 4 प्लस यहाँ पे 30 है ना, तो फिर आ गया आपके पास 2 cos 34 एंड रेडियंस बेसिकली। ओके, सो 34 इज इन रेडियंस, क्योंकि आपने ऐसा यूनिट्स में पुट किया, आपको वैल्यूज़ में दे रखी है 34 की। सो 2 इंटू माइनस ऑफ 0.85, सो यू मल्टीप्लाई, सो यू गेट 1.7 विद माइनस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। This is the part asked to me here, and the last question which you have asked is question number 4. So question number 4 में क्या दे रहा है आपको, a wave, let's see question number 4, a wave frequency दी हुई है मुझे, ठीक है, कितनी दी हुई है 500 हर्ट्स। दूसरा दिया हुआ है wave velocity which is 350 मीटर पर सेकेंड। Find distance between 2 points which are 60 डिग्री out of phase। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जब भी पूछा जाएगा तो आप मानेंगे कि एट फिक्स्ड टाइम, किसी टाइम पे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका टी फिक्स रहेगा, तो आप डेल्टा फाई की वैल्यू फटाफट 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स रखेंगे। तो यहाँ से आप क्या पूछा गया, डेल्टा एक्स। मैं अगर वेव बना दूँ, वाई एक्स ग्राफ है बेसिकली ये, ठीक है। तो वाई एक्स ग्राफ में वो 2 पॉइंट के बीच का गैप पूछा हुआ है उसने, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस ये है जो उसने दिया हुआ है 60 डिग्री। सबसे पहली बात, डेल्टा फाई को रेडियन में पुट करिए, ठीक है। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, π/3 इज इक्वल टू 2π/λ। आपको एफ और वी दिया हुआ है, आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, है ना।
तो चलिए अपन निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आ गया मेरे पास, पाई पाई कैंसिल हो जाता है बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा बाई 6 बेसिकली। तो लैम्डा कैसे निकालते हैं? लैम्डा होता है आपका v इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन है, याद होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा हो जाएगा v बाई एफ, सो v बाई 6f। v दिया है आपको 350 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 500, you can solve and get your answer. So if I try, I'll get 5 say 10 times or 5 say 7 times. So I'm getting delta x as 7 divided by 60 meters, ठीक है। और बॉम्बे पार्ट जो इसका पूछा हुआ है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट certain points at time 10 to the power minus 3 seconds apart. Alright, so लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। एट ए सर्टेन पॉइंट, एट ए सर्टेन पॉइंट का मतलब क्या हो गया आपका एक्स फिक्स, और उसी पॉइंट के दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछ रहा है, तो इट इज़ ओमेगा डेल्टा टी, और यू कैन से इट इज़ 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, विच यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 पाई एफ डेल्टा टी, ठीक है। तो फटाफट ही तो हो गया 2 पाई इंटू 500, और कितना टाइम डिफरेंस दिया इसने,